अबाउट प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. नाउ प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, लेट अस सपोज मैं प्लस प्लस ए लिखती हूँ. लेट अस सपोज I take one variable because it is unary operator. So and if I put its result in int c, right? So and if you print the value of c as well as a, तो यहाँ पर ये सेम वैल्यूज आएंगे, राइट. एंड लेट अस सपोज आई टेक हेयर इंट a इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो मेन के अंदर इफ आई टेक ऑल दीज वैल्यूज, तो बोथ दीज वैल्यूज विल बी इंक्रीमेंटेड, राइट. तो प्री मतलब फर्स्ट वन ऐड होगा एंड देन एक्चुअली आई एम टेकिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, राइट. ठीक है, ओके. सो इफ यू प्रिंट c and a, they will be giving 11 रिजल्ट. और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, इफ आई राइट a प्लस प्लस, सो फर्स्ट a's वैल्यू इज यूज्ड, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a इज यूज्ड एंड इट इज assigned to c and then a will be incremented, right. So c यहाँ पर 10 आ जाएगा and a will be 11 here in this case, right. Now in the same scenario I have to implement it in the form of an object. So let us suppose a is a class and I write I take one object, right, and then I write obj. Let us suppose through some object you are giving some with some get function you are initializing the values also, right. तो 10 20 अगर इसके कोई data members होंगे, and then I have to write obj plus plus like this. I want this post increment or somewhere with some like with some other object I am using this pre increment. This is another object, right. So I have to use these unary operators with some object now. So I have this scenario, fine. So let us take one example. So I am writing here hash include iostream, then I am taking using namespace std, and let us suppose I am having one class called complex. तो मैं complex नाम की class ही लेती हूँ उसमें, and here I am taking two integers. Let us suppose I am taking ये आपका जो real and imaginary होते हैं दो data members, right. And in public I am initializing these values with the help of complex आपका जो यहाँ रहेगा constructor. So int a I am writing and int b, sorry, I will be taking that is okay, int float a comma float b, and then I will be assigning the value a to r and then b to I. yes, ठीक है. तो ये मेरे पास में हो गया. Now I want to so I want this kind of scenario. Let us suppose I am creating int main, और main के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर now I can create object, right. तो complex यहाँ मैंने let us suppose मैं c1 object दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 and 2 values ऐसे दे रही हूँ, ठीक है. whatever if you want some other values to be given, then you can also take input from the user. Okay, for c2 I am giving 2 comma 3, like, so I am just initializing these values, fine. So now later on, now because this is unary operator, so somewhere what will I do, I want कि मेरे पास में यहाँ पर देखो, तो c1 अगर मैं लेती हूँ, इसका मतलब ऐसा करने से c1 का जो r है, c1 में क्या होगा आपके पास में, c1 में जो आपका r है मतलब रियल पार्ट, उसमें आपके पास में 1 आ जाएगा, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आपके पास में 2 आ जाएगा, राइट. ऐसे ही क्या होगा, जो c2 रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, उसमें आपके पास में r में 2 है आपके पास. लेट अस सपोज आई टेक सम अदर वैल्यू ऑल्सो, 7 and 8 ले लेती हूँ, ठीक है, so that it can be differentiated well. So r I am putting 7 and I will be 8 for object 2, fine. अब मेरे पास में ऐसा कुछ सिनेरियो होना चाहिए where प्लस प्लस c1 ऐसा, राइट. इतना ही लिखने से तो मुझे क्या करना है, राइट. और एक ही ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट इज यूनरी ऑपरेटर, सो इट इज ओनली it will take only one operand. So let us suppose I am making one show function also, right.
आई एम मेकिंग वन शो फंक्शन जिसमें कि मैं इन दोनों को प्रिंट करके देख सकती हूँ। तो सी आउट आर और फिर मैं यहाँ कुछ स्पेस दे देती हूँ, राइट, और फिर मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करती हूँ एंड देन दूसरी कोई वैल्यू के लिए एंड एल मैं इसमें लिखती हूँ, राइट। तो अब अगर मुझे प्री इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ऑपरेटर, फिर प्लस प्लस आपका होगा एंड देन यहाँ पर बिकॉज इट इज़ यूनरी ऑपरेटर सो यू ऑलरेडी नो कि ये मेंबर फंक्शन है तो इसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, है ना। तो यहाँ पर आई एम नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट हियर, राइट, बिकॉज इट विल बी नीडिंग ओनली वन ऑपरेंड एंड जो भी इसको कॉल करेगा ऑब्जेक्ट वही उसका डेटा रहेगा यहाँ पर। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, आई एम जस्ट जो भी इसको कॉल करेगा इट विल बी हैविंग आर एंड आई, सो आई राइट हेयर आर प्लस प्लस or you can write here plus plus r and another value will be plus plus I, ठीक है। और जब आप इंक्रीमेंट कर देते हैं and then you can return the current object, right। तो कैसे उसको लिखते हैं हम, रिटर्न आपका वैल्यू एट दिस पॉइंटर, राइट। तो हेयर यू विल बी रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट, फाइन, क्योंकि रिटर्न आप एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास, सो व्हाट यू कैन राइट हियर रिटर्न टाइप इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको चेक करने के लिए अब पहले क्या है, ये ऐसे ही काम करेगा कि जैसे आप करते हैं C1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड देन यू आर जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन, ऐसे काम करेगा, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले अगर आप सी आउट करवाओगे किसको वैल्यू C1, अब ये तो डेटा आपका क्या है आपका, लेट अस डायरेक्टली टू प्रिंट द वैल्यूज आई कैन कॉल शो फंक्शन, जो मैंने अभी यहाँ पर ऊपर बनाया है, राइट, ये वाला शो फंक्शन। सो व्हाट आई डू, C1 को मैं पहले प्रिंट करती हूँ C1 डॉट शो, फाइन, और फिर मैं यहाँ इसको एंड देन व्हाट आई डू, सो व्हेन यू कॉल दिस शो फंक्शन तो आपके पास में C1 में आपको पता है क्या आएगा, आपके पास में R में इसका आ जाएगा 1 एंड I में इसका आ जाएगा 2, ठीक है। एंड व्हेन यू प्री इंक्रीमेंट दीज वैल्यूज देन ऑल्सो यू जस्ट चेक के C1 डॉट शो करके जब आप देखेंगे तो आपके पास में क्या आना चाहिए, अब दोनों वैल्यूज अब क्या है, R भी इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड I भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास में यहाँ पर आ जाना चाहिए C1 में ही C1 के ही आपके पास में R में आ जाएगा 2 एंड देन I में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके इसको फर्स्ट मैं कंपाइल करती हूँ एंड देन आई रन दिस प्रोग्राम। सो यू कैन सी हियर 1 एंड 2 क्या है, जब आपने इसको यहाँ पर इसको शो किया, राइट, सिंपल 1 and 2 फर्स्ट विदाउट डूइंग इंक्रीमेंटिंग, राइट, विदाउट इंक्रीमेंट, राइट। तो उसके बाद जब प्लस प्लस करते हो तो 1 जो है वो 2 में इंक्रीमेंट हो गया +1 एंड 2 जो है वो 3 बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज द केस विद प्री इंक्रीमेंट। अब जब पोस्ट इंक्रीमेंट की अगर बात करते हैं, लेट अस सपोज मैं C2 को पहले शो करा के देखती हूँ यहाँ पर। तो C2 डॉट शो में आपके पास में क्या वैल्यूज आएंगी, इसकी ओरिजिनल वैल्यूज जो हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ बिफोर, लेट अस सपोज आई कैन राइट हेयर वन मैसेज बिफोर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर यहाँ आफ्टर सी आउट में, राइट, आई कैन राइट हेयर आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, राइट, ओके। तो अभी इसके बाद में क्या है, हेयर नाउ इट इज़ फुल, राइट। तो अभी यहाँ अगर मुझे यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट, लेट अस टॉक अबाउट पोस्ट इंक्रीमेंट नाउ। सो हेयर आई कैन पुट वन मैसेज सी आउट बिफोर पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट, एंड देन यहाँ जब मैं इसको शो करती हूँ, नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट लाइक C2 प्लस प्लस, ठीक है, C2 प्लस प्लस। तो अब इसमें क्या होना, सी वेन एवर वी आर इंक्रीमेंटिंग एनी वैल्यू तो आपको इसको पहले तो सेव करना पड़ेगा, राइट। टू डिफ्रेंशिएट पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट तो आपको क्या पहले करना पड़ेगा, नाउ दिस कोड इज फॉर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, दिस इज फॉर प्री इंक्रीमेंट, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर प्री डिक्रीमेंट जिसमें माइनस कर देंगे, बट फॉर जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बोथ दीज
ये प्री एंड पोस्ट व्हाट वी डू, यहाँ मैंने एक ऑपरेटर फिर से बनाया है. आई एम जस्ट ओवरलोडिंग दिस ऑपरेटर. तो ऑपरेटर तो सेम है, बट जस्ट टू डिफरेंशिएट आई एम जस्ट पुटिंग वन इंट डेटा टाइप हेयर. यस, इसमें कुछ और भी आप ऐसे दे सकते हैं. तो दूसरा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, आई विल बी जस्ट फर्स्ट टेकिंग, आई विल बी जस्ट फर्स्ट 1 minute, I'll be first I have to hold the value. जो भी आपके पास में देखो प्री ओके पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे मैं a प्लस प्लस करती हूँ तो जो अभी इसकी करंट वैल्यू है उसको मुझे कहीं सेव करना होगा, राइट. सी में लेटर सपोज मैं इसको सेव में करती हूँ. ये सिंपल एक मैं कोई इंट वेरिएबल अगर फ्लोट वेरिएबल कुछ भी ले रही हूँ, सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैं बात कर रही हूँ. सो फर्स्ट यू हैव टू होल्ड दिस डेटा इन सम वेरिएबल, ओनली देन यू कैन सी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है. बिकॉज जब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सी आउट ए को कराओगे तो वो भी इंक्रीमेंट होकर ही आएगा. तो हम इसको इस पर्टिकुलर चीज को कि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं स्टेप पे, I have to hold this value or the current value, and then I can print this current value also somewhere. Yes, तो right. तो अभी इसमें जो करंट वैल्यू ऑफ ए होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू, वो सी में रहेगी और इंक्रीमेंट होके जो आएगा आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट वो ए में चला जाएगा. यही चीज हमने ऑब्जेक्ट के साथ में करनी है. तो आपके पास में हम पहले करते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स टाइप का है डेटा, इसलिए मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल में कॉम्प्लेक्स टाइप का ही लूंगी. ठीक है. तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू को आप क्या करना चाह रहे हैं, पहले किसी टेम्प वेरिएबल में उसको डाल दीजिए, है ना. तो ये देखिए, आई एम जस्ट पुटिंग ये वैल्यू एट दिस पॉइंटर इन दिस टेम्पररी वेरिएबल, राइट. फाइन. अब इसी को हमें रिटर्न करना होगा. ठीक है. तो लास्ट में अभी मैं क्या करती हूँ, जो हम लास्ट में रिटर्न लिखते हैं तो उसमें मैं इसको ही रिटर्न करती हूँ. तो ये टेम्प जो वेरिएबल है, सॉरी टेम्प जो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने अभी की करंट वैल्यू स्टोर करी, राइट. ऐसे कैसे, जो अभी की हमने करंट वैल्यू जो हमारे वेरिएबल की है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की है, वो हमने सेव करी. तो यहाँ जो मेरे पास में करंट ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको मैंने टेम्पररी ऑब्जेक्ट में स्टोर करा दिया. और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी टेम्पररी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करेंगे लेटर ऑन. यस. इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपको पता है कि इंक्रीमेंट भी होगा, तो इसलिए हम जो आर है इसका उसको भी हम प्लस प्लस कर देते हैं. नाउ ईदर यू राइट आर प्लस प्लस और यू राइट प्लस प्लस आर, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट. ठीक है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरा आप यहाँ पर प्लस प्लस आई ऐसे आपको लिखना है. ठीक है. क्यों, क्योंकि जो भी उसको कॉल करेगा वो वैसे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो इनिशियल वैल्यू आपकी यहाँ पर सेव हो गई है, और जो नेक्स्ट, जो जैसे यहाँ पर जो ये नेक्स्ट स्टेप होता है ये भी आपको इंक्रीमेंट करना है. यस, प्लस प्लस. तो उसको भी आप करंट वैल्यू में ही स्टोर करोगे. तो पहले वाली करंट वैल्यू आपने टेम्पररी ऑब्जेक्ट में दे के अभी आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे. ठीक है. और जो रिटर्न होगा वो आप करंट वैल्यू इस समय रिटर्न करना चाहते हैं, बट ओरिजिनली वो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा. तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले C2 डॉट शो में जब हम करेंगे तो C2 की जो ओरिजिनल वैल्यूज आपने दी हैं, R में इसमें आपने 7 दिया है और I में आपने 8 दिया है. यस. तो अभी क्या है, आप पहले C2 प्लस प्लस करेंगे, राइट. अगर तो आप इसको डायरेक्टली C2 डॉट शो करके देखोगे तो क्या होगा, तो डायरेक्टली आपके पास में ये 7 की जगह 8 और ये I में 8 की जगह 9 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे जब हम सी आउट कराते हैं तो वैसे भी वो प्लस होके आता है ना. फर्स्ट वी हैव टू सेव दिस वैल्यू. तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि अगर हम ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिटर्न टेम्प प्लस प्लस इंट. So now if I run this, now it is giving error because I have not created one default constructor, right. So let us make one default constructor also. So what happens now, it will work fine. So isme anyways it will give you ye
7 एंड 8 जो है, मैंने जैसे आपको बोला कि 8 एंड 9 हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट. सो इफ यू वांट टू सी कि यहाँ पर कौन सा मतलब इसको हाउ आई हैव सेव्ड एंड व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, देन व्हाट वी कैन डू, आई कैन ऑल्सो मेक वन C3 ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो C3 में हम इसको सेव करके यहाँ इधर रख देते हैं. तो इसमें क्या होगा, जो भी C2 की वैल्यू होगी, करंट वैल्यू, दैट विल गो इन C3 एंड देन यू कैन इंक्रीमेंट द वैल्यू. सो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, first you take this value, you are assigning this value to C3 object and then you can increment the value. So now अगर इसमें आप C3 को देखोगे तो C3, like if I write C out, the value in C3 object is, and then you put here this semicolon, and then if you are writing C3 dot show and it will be giving you the original values. ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ एक मैसेज दे देती हूँ कि the values of C2 after post increment is, और फिर आप यहाँ C2 को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आप देखिए रिजल्ट, what is the output of this program, let us see. Right, so see this. So before post increment the value of C2 is 7 and 8. वो हमें already पता है, right? 7 and 8 C2 में था. This is before post increment 7 and 8 है. The value in C3 is 7 and 8 because right now you are assigning the value, right? And the value of C2 after post increment is 8 and 9. Fine. So it is just to differentiate we have to first differentiate these two operators. So the second one is post increment. ठीक है, तो second one is post increment. इसमें बस आपको what is the difference in the pre increment, first increment will be there and then the original value is returned. So we have returned this object, right? And in post increment, here you are putting this integer only to differentiate it with the pre increment, but the definition is also different, right? This is used for post increment. So first I'll be saving this the current object value in some temporary object, right? And then I'll be returning this also. इसी को हम रिटर्न करेंगे, बट साइड बाय साइड आफ्टर दिस स्टोरेज, storing this the current object in the temporary object, I am also incrementing the value of this R and I, the data members, right? Thank you.